Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, since this news has come that there will be no creation of new post, lot of confusion is there, and some people are thinking that this is a ban on recruitment. So now understand what is the meaning of creation of new post and what is banned. Say there is a department like excise. It has post of excise inspector, and these posts are say 2000. That is the post already sanctioned. Now excise department cannot increase the number of posts from 2000 to 2001. That is creation of new post. That means the excise department has to manage within 2000 inspectors if that is the sanctioned post on a given date. That is before 1st July 2020. But this is possible that post are 2000, actual strength is 1700. That means 1700 people are working against sanctioned post of 2000. So 300 posts are vacant. Now it is up to government whether they will fill this post or not. They can fill the post through a SSC process, or they may not fill these posts. So this is the space where new recruitment can happen. But the number of posts will not rise. Say there is a Delhi police. There are say 20,000 constables. Now they cannot have 20,001 constables. The post will be frozen at 20,000. But posts are 20,000 and 18,000 are working. 2,000 are unfilled posts. They can recruit 2,000 people, or they may not recruit 2,000 people. So how it impacts the new employment? It impacts the new employment only to the extent creation of post. That means there will not be new posts created. First, the number of posts will be frozen in the existing cadres, and there will be no new post, new designation will be created during the period of ban. This is the implication. When we talk there will be no creation of new posts does not mean there will be no new recruitment. Don't confuse between these two things. But sometimes we can use the word job, we can use the word post. These are loose words. But naturally, the intention is clear. It is expenditure control. If intention is to control the expenditure and even my posts are vacant, whether I will have courage to fill these posts, that is most crucial thing. Because most of the people, those are working on various positions, they may not even indent these vacant posts also, just to please their bosses. They will say, sir, posts are 2000, I am managing in 1700. I am saving the expenditure. This is the real issue. Because the circular is coming from expenditure control department. So intent is to save on salary. Some people say it is not a ban on recruitment. That means how things can take shape. This is the problem. Intent is that they want to maintain the present number of posts. There may be some posts vacant that can easily be filled. But some people, some department, some people may not even indent for filling of those posts. So from where job will come? So we have to understand this fine distinction.
अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। कल से एक सर्कुलर आया कि क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट के ऊपर प्रतिबंध लग गया। क्या ये नई रिक्रूटमेंट पे प्रतिबंध है? आंसर है नहीं। पर है क्या ये न्यू पोस्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए एक एक्साइज डिपार्टमेंट है, वहां पर 2000 पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर की, मान लीजिए, तो अब वो इसको 2001 नहीं कर सकते। क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट मींस पोस्ट विल रिमेन द सेम। 2000 है तो 2000 ही रहेंगी, 2001 नहीं हो सकती। पर 2000 होते हुए हो सकता है वहां पर 1700 आदमी काम कर रहे हैं, 300 पोस्ट खाली पड़ी है, तो ये 300 पोस्ट भरी जा सकती है। तो दैट मीन्स रिक्रूटमेंट कहां आ सकती है कि पोस्ट है पर खाली है, वो तो रिक्रूटमेंट आएगी। पर पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, वो नहीं अलाउड, पोस्ट नहीं बढ़ेंगी। मेरे ख्याल आप समझ रहे हैं बात। एक है आज कितनी पोस्ट है, कितनी सैंक्शन पोस्ट है, उतनी ही रहेंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। पर यदि वो पोस्ट खाली है तो इसको भरा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस है, मान लो हम कहते हैं उसके पास 20,000 कांस्टेबल की पोस्ट है और काम कर रहे हैं 17,000 कांस्टेबल, तो ये 3,000 पोस्ट भरी जा सकती हैं और नहीं भी भरी जा सकती। मगर पोस्ट 20,000 की 20,001 नहीं करी जा सकती अंडर दिस सर्कुलर फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया ये बैंकिंग और फाइनेंस पे लागू नहीं है, क्योंकि वहां तो पहले ही ये बैन लागू है, वहां पोस्ट बढ़ाई नहीं जा रही। जो रिटायरमेंट हो रहा है उसका ऑलरेडी 60 से 80% ही लिया जा रहा है। हर बैंक का आप देख लीजिए स्टाफ घटता चला जा रहा है। अब जो एसएससी है या जो अदर डिपार्टमेंट्स है, वहां पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि अगर वो डिपार्टमेंट चाहेगा पोस्ट भरना जो खाली है तो वैकेंसी आ सकती है, और अगर वो डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा इन पोस्ट को भरना तो वैकेंसी नहीं आएगी। अब ये सर्कुलर कहां पर आया है? एक्सपेंडिचर कंट्रोल से। तो जो एक्सपेंडिचर कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर ये कह रहा है कि सैलरी नहीं बढ़ानी, तो दैट मीन्स उसको वो नया स्टाफ भी नहीं देगा। तो इनडायरेक्ट मैसेज क्या है उसको कि जो खाली पोस्ट है उसको भी आप मत भरिए। डायरेक्ट नहीं है ये मैसेज, क्योंकि जो अफसर होते हैं वो अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशनें करते हैं। तो क्या होगा कि काफी डिपार्टमेंट हेजिटेंट होंगे पोस्टों को भरने में। वो अपनी शेखी बगाड़ेंगे कि सर देखो 2000 पोस्ट है, मैं 1700 में काम चला रहा हूं, मैं कितना एफिशिएंट सीनियर ऑफिसर। होता है ऐसा। तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जैसे कोई कहता है कि हमने गवर्नमेंट को डाउन साइज करना है, छोटा करना है, इसका क्या मतलब है? एम्प्लॉइज कम करने। गवर्नमेंट डाउन साइज क्या होती है? मिनिमम गवर्नमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट के अंदर कम से कम लोगों से हम काम चलाएंगे, और कम से कम चलाएंगे तो इसका क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल है। अब लोग उसको बात को नहीं समझ पा रहे, तो इसमें किसी की क्या गलती है? तो जब आप डाउन साइजिंग करेंगे किसी भी डिपार्टमेंट की, उसको छोटा करेंगे, तो नेचुरल है एम्प्लॉयमेंट ही खत्म होगी। ऑब्वियस है। तो ये हमें समझना है क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट क्या है। मेरा ख्याल मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया, और वो समझाया जो मुझे पता है। हो सकता है कुछ लोग मेरे से इस बात से ना एग्री भी करें, हो सकता है। मैं नहीं मानता कि सारी नॉलेज मेरे पास ही है, पर जो मेरा अकल कहती है, जो मेरी समझ कहती है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। गॉड ब्लेस यू ऑल।